الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما تمام تعریف حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے امہ اشکالک دژو تم جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مومنوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے اور یہ آیا ون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشن میں مومنن ام سب تراون تکیاز اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو غیب سے مطلع نہیں کرتا ہے البتہ رسولوں کو رسالت کے مناسب کے مطابق جو ان کو رسالت کے مناسب ادا کرنے میں بہرحال غیب کی خبر ضرورت پڑے اتنا ان کو وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے اور آخرس پر آیو منافقن تی ون کہ یس زن تہ بخل کران چھو یا یس زن اللہ تعالیٰ سن واتہ مز تہ خرچانس یس زن تہ اتھ پاتھ رٹان چھو بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ اس میں آپ کے لیے شر ہے اور یہ آیا ون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندی خاطر سے تمام دنیا و آسمانوں کی میراث وہ تو اللہ کے لیے ہے اور جو آپ بخل کرتے ہیں اور جو مال آپ سمیٹ کے رکھتے ہیں قیامت کے دن یہ آپ کے لیے آپ کی گردنوں کا توق بنے گا بہرحال مضمون یہ زنی انفاق فی سبیل اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا بے شک بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول کو سن لیا قالوا جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم غنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ونان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہسا بوز تہذ یہ کت یعنی تمن لکن ہز کت بوز اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال مدینہ پاک میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو منافق تھے مومن تو تھے ہی مومن کے علاوہ ایک تو منافق تھے دوسرے کون آباد تھے یہود یعنی یہود پوت پات پہ پڑھن منافقوں کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر کے رکھے ہوئے تھے مگر یہود جو تھے وہ تو اہلی کتاب تھے اب وہ انتہائی بےہودہ کلام کرتے تھے اللہ کے بارے میں یم ساتن زن آیت نازل گئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض عطا کرے گا تو یہود یم زن انہوں نے انتہائی بےہودہ کلام کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہو وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کیسا ہے اور ان مومنین کا خدا کیسا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ فقیر ہو گیا ہے اس لیے وہ لوگوں سے کیا طلب کرتا ہے قرض طلب کرتا ہے تو اس پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی لقد سمع اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا یعنی کن لوگوں کی بات یہود کی بات کو قول الذین قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم کیا ہے غنی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کات یا یہودی بےہود کلام یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस बात को दर्ज किया कि अल्लाह ने उन लोगों की बात को सुन लिया जो अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अल्लाह ताला फरमान सनक्तुबु मा कालू, अल्लाह तबारक व तआला ने लिख लिया जो कुछ वो कह रहे हैं, यानी खुदाइन तो लिखित, यानी अल्लाह ने ये बिल्कुल नोट करके लिया, रख लिया, मा कालू जो कुछ ये कहते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं लिख लिया, वक़त्लहुमुल अंबिया, हाँ इसके अलावा जो उनकी और भी गलतियां हैं, जैसे इन्होंने नबियों को कत्ल किया बगैर हक, बगैर हक के, यानी इसकी कोई दलील इनके पास नहीं थी। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि इनके लिए हमने जलाने वाले आग को, अजाब को तैयार करके रखा है। यानी यमन लुकन खौतश थोमुत क्या तैयार, एक दर्द उठाने वाला और जलाने वाली आग इन बेहुदा कलाम के लिए, और इस बेहुदा बातों के बजाय के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए इंतहाई दर्दनाक और जलाने वाला अजाब वो तैयार करके रखा है। याद गैस थाउन कि यम सातन ति जन अल्लाह तबारक इंसान का कलाम करन छे, हर वक्त बात सोच समझ कर करनी चाहिए। तिकाज अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमान कि जो कोई भी बात आप निकालते हैं, वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो कोई भी बात आप मुंह से निकालते हैं उसे इंतहाई मजबूत निगरान उसको कैद कर लेते हैं, यानी सकात तुम था और क्या महफूज कर। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस कलाम को महफूज कर लिया है, लिख लिया है। और इतना ही नहीं, इनकी बाकी जो गलतियां हैं, जो नबियों को इन्होंने बगैर किसी हक के कत्ल किया, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नोट किया है, और अल्लाह तबारक व तआला इनके इस बेहुदा कलाम के बदले इनके लिए जलाने वाला और दर्दनाक अजाब इनके लिए तैयार किया है। बहरहाल मुनाफिक जो यह तरीका अमल, जब वो कुरान के बारे में कोई बात सुनते थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला फरमान अबिल्लाहि व बि आयातिहि व बि रसूलिहि कुंतुम तुस्तहजिऊन, क्या तुम अल्लाह के बारे में, उसकी आयात के बारे में और उसके रसूल के बारे में इस्तेहजा करते हो, तशवा उमर मजाक और इनका ठट्ठा मजाक करते हो। बहरहाल इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, तिकाज यम चीज़ अल्लाह तबारक व तआला सद गज़बस इंतहाई दावत दिवन। इसीलिए यम जन मोमिन छ उनको भी इस बारे में मोहतात रहना चाहिए। बल्कि हदीसस में आमुद फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा कभी अनजाने में ऐसी बात मुंह से निकाल देता है कि वो जहन्नम के अमीर गढ़ों में गिर जाता है और इसे इस बात का शऊर भी नहीं होता है। इसलिए कोता पज मोहतात रोजन अकिस इंसान कथ मुतलिक, कथ करनस मुतलिक और जबान के बारे में। और आमतौर पर हमारी गुफ्तगू में भी ये होता है कि आमतौर पर ये जन्नत जहन्नम का तज़किरा होता है, हम यूं ही मजाक में कहते हैं कोसा जन्नत वुशित, ये तो हम आम कहते कुछ साथ से वन या कोसा जहन्नम वुशित, हत्ता कि ये तो कलिमे कुफर है, यम बाज़त कुम का, ये वो कलिमे हैं जिनसे इंसान काफिर हो जाता है। या इसी तरह कभी कोई बात कहता है पाची वन जन्नत में हूर और इस तरह तज़किरा होता है, फिर हूरों के बारे में भी हम मजाक से या इस तरह से बात लेते हैं। तो ऐसी ही बातों पर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, इन बातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनसे क़यामत के दिन कहेगा चखो और देखो कि इसके बदले में आपको जलाने वाला और दर्द उठाने वाला अजाब है। इसलिए अपनी बातों पर गौर करना चाहिए इंसान की बुकुस कलाम छुस कारण। एम पच अल्लाह ताला फरमान ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, अच्छा ये जलाने वाला अजाब इनको क्यों मिलेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला इन पर जुल्म करेगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमान ज़ालिका, ये जलाने वाला अजाब इन पर इसलिए होगा बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, जो कुछ अमल इन्होंने अपने हाथों से आगे भेज दिए होंगे इसी का बदला इनको मिलेगा। यानी यस कमाई यमो कर्मज छ दुनियास मज, यस कमाई यमो सूजमु छ ब्रोंठ पर, इसी कमाई को ये आखिरत में देखेंगे और यही कमाई ये वहां पर देखेंगे किसकी सूरत में? जलाने वाले आग की सूरत में। अल्लाह ताला फरमान व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल अबीद, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, बल्कि इन्होंने खुद अपने आप के ऊपर जुल्म किया है जो उन्होंने अमल आगे भेज दिए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनको जलाने वाला या दर्द उठाने वाला अजाब इनके लिए रखा, ये अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने ऐसी ही कमाई की थी दुनिया में, इसलिए इसी कमाई का बदला कयामत के रोज पाएंगे। एम पच अल्लाह ताला फरमान अब ये यहूद यम इंतहाई शरीर कौम और इंतहाई बदबख्त कौम थे। ये देखो अल्लाह पर कैसी कैसी बातें ये बांधते थे और किस पर मजाक कर कमन
रसूल सुद और साहब सबन हिंद। अब अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं या आपके साथियों का मजाक उड़ाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले जो नबी थे उनका भी इन्होंने ऐसे ही मजाक उड़ाया है। तुम तिशमा क्या यह कोरमुत। तो अल्लाह ताला फरमान अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना, हाँ ये वो लोग हैं, यानी किन के बारे में है, ये इन यहूद के बारे में है। अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, क़ालू जो कहते हैं, इन्नल्लाह अहिदा इलैना कि हमने, अल्लाह ने हमसे अहद लिया है, यानी खुदायन च असे अहद हेतमुत कत बारस मज अल्लाह नुमिन लिरसूलिन कि आप हरगिज किसी रसूल पर ईमान नहीं लाना, हत्ता तब तक यातीना बिकुर्बानी ताकुल नार, जब तक कि वो नबी ऐसी कुर्बानी लेकर ना आएगा जिसको आग खाएगी। यानी बताता ये फिक्री आयत, यानी यहूद इफ्तरा गलत कथो ये थोमुत पान सो मनसूब कर कि यम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान कि असे खुदायन अहद हेतमुत, हमें अल्लाह ने अहद लिया है हमसे कि आप किसी भी रसूल पर ईमान नहीं लाना जब तक कि वो कोई कुर्बानी नहीं करेगा, और उस कुर्बानी को कौन खाएगी, आसमानी आग खाएगी। बहरहाल ऐसी पता आपने सुना होगा, अगर सुना नहीं होगा तो आपके इल्म में इजाफा होगा। यम सातन जन यथ उम्मतस खास इनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद जरिए तुफैल आमद करना, जैसे पहली उम्मतों पर एक सहूलियत या सख्ती कि वो सिर्फ खास जगहों पर इबादत कर सकते थे, इबादत कहाँ नहीं होता इबादत हकन, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से हमें यह सहूलियत मिल गई कि हमारे लिए तमाम कुर्रे अर्ज को क्या बना दी गई, मस्जिद बना दी गई। इथे पे पतमें उम्मत उन पर एक और आजमाइश और एक इंतहाई कड़ा इम्तिहान यह भी था कि तुमन खतर कुर्बानी और कुर्बानी का अमल जो है ये पिछली उम्मतों में भी था। ये ऐसी होता है कुर्बानी अमल हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी की, बल्कि कुरान कहता है जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा, कुर्बानी का अमल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। यम साथ तिहिंद नेची हाबिल और काबिल, उनमें से एक ने कुर्बानी की थी, दूसरे ने भी कुर्बानी की थी, मगर एक बेटे ने बेहतरीन भेड़ ज़बा किया था अपने रेवड़ में से, एक ने बिल्कुल मर जाया हुआ या मरा हुआ मरियल भेड़ क्या उन्होंने वो गला सो किसान उसने गला सड़ोमुत गलोमुत गला वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। कुदरती तौर पर अल्लाह किसकी कुर्बानी को कबूल करता, यम बेहतरीन माल को अल्लाह ताला से वतन खर्च। तो पहले ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये थी कि तुम क्या वन उस कुर्बानी के गोश्त को या कुर्बानी के जो ये कुर्बानी चीज़ उसको वो बिल्कुल किसी मैदान में रखते थे, फिर आसमान से एक आग का गोला आता था और वो इस आग का गोला उस कुर्बानी के गोश्त को या कुर्बानी की चीज़ों को भस्म कर देता था। यह इस बात की अलामत थी कि यम कुर्बानी गई कबूल। अगर ना आसमानी नार ये है कि अगर ना आसमानी गोल ये है क्या, ये इस बात की अलामत थी कि यह कुर्बानी कबूल नहीं हुई। बिल्कुल यही मामला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दो बेटों के साथ भी हुआ। हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, काबिल से कुर्बानी कबूल, हाबिल की कुर्बानी को आसमानी आग ने खा लिया, भस्म कर दिया। तो यह अमिच अलामत कि कुर्बानी क्या गई। इसी तरह से साबिका उम्मतें जो भी थी जब वो कुर्बानी करते थे, ये कुर्बानी गोश्त या कुर्बानी चीज़ ये उनके लिए हराम था। ये खुदा से वत पे नबर का थावन तो आसमानी आग आती थी वो उसको क्या कर देती थी, भस्म कर देती थी। इसका मतलब था कि ये गई कबूल। अगर न गसे तेल आसमानी आग में कबूल, ये कबूल गो कहें मानो खोन कहें, तो ये उनके लिए हराम थी। यही मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ था, यही मामला हजरत याहया अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ था, यही मामला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ ऐसा चला आ रहा था। बहरहाल यह कत ये मोड़ यमो यहूदी ये पढ़, क्योंकि हमने पिछली सूरह बकरा में पढ़मुत यम यहूदी पानी जबान तिथ मोड़न ये कुरान ये तौरात में इस तरह तहरीफ करते थे, या तो ये तिलावत में उसमें तहरीफ करते थे या माना में वो क्या करते तहरीफ। तो इसी तरह इन्होंने इस तौरात के हुक्म की भी तहरीफ की और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से एतराज़ का एक उज़्र ये बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने कुर्बानी करे, हम देखेंगे अगर ये कुर्बानी आसमानी आग इसको खा गई तो हम इस पर ईमान लाएंगे। यो अस्यूमत क्या, ये तो इनका बहाना था, असल में तो इनको ईमान नहीं लाना था किस पर, अल्लाह पर। तो यही जिक्र यहाँ पर आ रहा है इस आयत में। अल्लज़ीना क़ालू ये यहूदी कहते हैं, इन्नल्लाह अहिदा अलैना अल्लाह ने हमसे पुख्ता वादा लिया है, अल्लाह नुमिन लिरसूल आप हरगिज किसी रसूल पर तब तक ईमान नहीं लाना, हत्ता यातीना बिकुर्बानिन ताकुलु नार जब तक कि वो कुर्बानी नहीं करेगा और उस कुर्बानी को कौन न खा डाले, आग न खा डाले। अल्लाह ताला फरमाता कुल या रसूलुल्लाह सब इनसे कह दीजिए, क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली आपके पास तो इससे पहले मुझसे पहले बहुत से रसूल आए हैं,
बिल बायिनात वाज़ह निशानियां लेकर, यानी वाज़ह निशानी से मुराद है कि उन्होंने ऐसी कुर्बानियां की जिनको अल्लाह की आग ने खा डाला। बिल लजी कुल तुम फलिमा, और वो अहद भी उन्होंने पूरा किया, कुल तुम जिसका आप जिक्र करते हो, यानी उस कुर्बानी को भी उन्होंने आपके सामने किया। हजरत याह्या के बारे में आता है कि यमो करे हजरत याह्या से यह मुतालबा ज़िक्र सा कुर्बानी, और हम देखेंगे कि आपकी इस कुर्बानी को आग खाई। उन्होंने कुर्बानी की, आसमानी आग आई, उसको खा डाला, तब भी उन्होंने उस पर ईमान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कुल या रसूलुल्लाह आप इनसे कह दीजिए कद जाअकुम रसूलुम, यकीनन आपके पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आए हैं, बिल बायिनात वाज़ह निशानियां लेकर, व बिल लजी कुल तुम, और वो निशानी लेकर भी जिसका आप जिक्र करते हो। फलिमा कतलतुमुहुम, तो बताओ आपने फिर उन रसूलों को क्यों कत्ल किया। हालांकि आपको तो चाहिए, आपको तो उन पर क्या लाना चाहिए था ईमान, आपने तो उनको कत्ल किया जिनको नहीं ये वाज़ह निशानी। तो मतलब ये है कि आपके ये बिल्कुल लंगड़े बहाने हैं, आपके ये बिल्कुल बहाने हैं कि आपको असल में इस रसूल पर ईमान नहीं लाना है। अल्लाह ताला फरमान इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर आप सच्चे हो तो बताओ उन नबियों को आपने क्यों कत्ल किया जो वाज़ह निशानियां लेकर भी आए थे और जो उस बात को भी पूरा कर चुके हैं जिस बात का आप मुतालबा मुझसे कर रहे हो। यानी तो तुम ईमान तो मैं पे कहते ईमान। अल्लाह ताला फरमान फाइन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइन कज़्ज़बूका, पास इन्होंने उनको झुटलाया, फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको ही सिर्फ नहीं जुटलाते हैं, फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक, बल्कि जो आपसे पहले रसूल गुजरे हैं उनको भी इन्होंने। इसलिए आप अपने दिल मुबारक को तंग वो तसल्ली आयदिन कमन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये आपको जुटलाते हैं, आपके ये जन इस्तेहज़ा करते हैं कि हाय वह गो खुदा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फकीर, सहाबा का मजाक उड़ाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह अपना दिल मुबारक तंग मत कीजिए। इन्होंने इससे पहले भी रसूलों को जुटलाया है जिस तरह आपको ये जुटलाते हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। जाऊ बिल बैनात व फाइन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बैनात। हाँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं जुटलाया है, ये आपको नहीं जुटलाते, बल्कि आपसे पहले भी जो रसूल आए हैं जाऊ का बिल बैनात, जो कि वाज़ह निशानियां लेकर आए थे, वह ज़ुबुर, और वह क्या लेकर आए थे ज़ुबुर। ज़ुबुर ज़ुबुर कहते हैं असल में आसमानी सहीफे को। आके इन ज़ लफ्ज़ कुरान में, एक है किताब, दूसरा है ज़ुबुर। किताब जो ना बजी किताब, जिस तरह कुरान को कहा जाता है किताब, और ज़ुबुर के लकट लकट सहीफ, छोटी किताब, और वह किताब जिसमें नसीहत हो, जिसमें वाज हो, उसको कहते हैं ज़ुबुर। और यही लफ्ज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जो किताब नाजिल हुई ज़बूर, ये इसी से निकला है। ज़बूर का मतलब है आसमानी छोटी किताब जिसमें लोगों के लिए वाज और नसीहत हो। तो अल्लाह ताला फरमान कि इन्होंने सिर्फ आपको नहीं जुटलाया, बल्कि इन्होंने आपसे पहले भी नबियों को जुटलाया जो वाज़ह निशानियां लेकर आए थे, और जो ज़ुबुर लेकर आए थे, छोटी छोटी आसमानी किताबें लेकर आए थे जिनमें आपके लिए, जिनमें उनके लिए वाज और नसीहत था। वल किताब, और कुछ नबी तो किताब लेकर भी आए थे, यानी बड़ी किताबें लेकर भी आए थे, जैसे इंजील थी, जैसे तौरात थी। वल किताबिल मुनीर, और रोशन किताबें लेकर आए, तब भी उन्होंने उन रसूलों को जुटलाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको ही नहीं जुटलाते हैं, बल्कि आपसे पहले भी जो रसूल गुजरे हैं, जो किताबें लेकर आए, जो ज़बूर लेकर आए, जो सहीफे लेकर आए और वाज़ह निशाने लेकर आए, उनको भी ये जुटला चुके हैं। इसलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दिल मुबारक को तंग मत कीजिए। यम थे पन्निस हालस पे, इनका ये वतीरा ही ऐसा रहा है, इसलिए आप अपने आप को इनके बारे में ज्यादा परेशान मत कीजिए। बहरहाल अल्लाह ताला से मांगो दुआ कि रब्बुल आलमीन इस कुरान पर अमल करने तौफीक, और यहूद की जो ये बुरी खसलतें हैं इनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।